A warm welcome to all of you in masterbabu.com. I am Swatandra Kumar, faculty of masterbabu.com. We are discussing the chapter flotation, under which we already had video, the thrust and pressure in a fluids. Today we shall discuss following three topics: buoyancy, Archimedes principle, and relative density. Have you ever had a swim in a pool and felt lighter? Have you ever drawn water from a well and felt that bucket of water is heavier when it is out of water? तो ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है। जब आप स्विम करते हैं तो आपको लगता होगा कि मेरा कोई तो वेट ही नहीं है, एकदम हल्का फील करते होंगे। गांव सब में पानी निकालते होंगे कुआं से, तो जो ही वो पानी से बाहर आता है बकेट, तो अचानक से वो भारी लगने लगता है बकेट। Have you ever wondered why a ship made of iron and steel does not sink in a sea water while the same amount of iron and steel in the form of sheet would sink? एक नाव शिप जो है वो आयरन और स्टील से बना हुआ रहता है, वो समुद्र के पानी में नहीं डूबता। वही आयरन या स्टील रहता है तो सेम अमाउंट ऑफ आयरन से बना रहेगा तो वो सिंक हो जाएगा। These question can be answered by taking buoyancy in consideration. Let us understand the meaning of buoyancy by doing an activity. Take an empty plastic bottle, close the mouth of the bottle with an airtight stopper and put it in a bucket filled with water. You see that bottle floats. एक खाली बोतल को उसको यदि अच्छे से बंद करके या फिर स्टॉपर लगा करके, और एयर टाइट होना चाहिए, उसको यदि हम बकेट जो कि पानी से भरा हुआ उसमें यदि उसको हम डाल देंगे तो क्या देखेंगे? उसमें देखेंगे वो फ्लोट कर रहा है। और यदि उसको हम पुश करने का कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि यू विल फील एन अपवर्ड फोर्स। ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन, you will find it is difficult to push deeper and deeper. This indicates water exerts a force on a bottle in upward direction, and the upward force exerted by water goes on increasing as the bottle is pushed deeper till it is completely immersed. एक बोतल को यदि हम, ये पानी का लेवल है, इसको जो जो हम अंदर डाल रहे हैं त्यों त्यों हम क्या देखेंगे कि ये पानी जो है इसमें फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और उसको डिफिकल्टी हो रहा है जितना इसको नीचे लेके जा रहे हैं। लेकिन फाइनली एक बार कंप्लीटली यदि पानी में इमर्ज कर गया तब देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि अब जो है और ज्यादा हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, तो कंप्लीटली इमर्ज होने तक ये चीज होगा। नाउ रिलीज द बोतल। नीचे जाकर के यदि बोतल को छोड़ देंगे तो वो अपने आप क्या देखेंगे, ये बाउंस होकर के अपनी सरफेस पे आ गया है। तो does the force due to gravitation attraction of the earth acts on the bottle? तो क्या इस केस में ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है बोतल पे? If so, why doesn't the bottle stay immersed in the water after it is released? जब उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो वो नीचे ही जाकर के क्यों नहीं डूबा रह जाता है? How can you immerse the bottle in the water? The force due to gravitational attraction of Earth acts on the bottle in the downward direction. So the bottle is pulled downward, but the water exerts an upward force on the bottle. बोतल को जब छोड़ दिए पानी के लेवल पे तो वो थोड़ा नीचे जा रहा है। क्यों? Because of the attraction of Earth. But water exerts an upward force on the bottle. लेकिन पानी भी ऊपर की तरफ इस बोतल पर फोर्स लगा रहा है। Thus the bottle is pushed upward. We have learned the weight of the object is the force due to the gravitational attraction of the earth. When the bottle is immersed, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than its weight. यदि पानी में वो बोतल था तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, लेकिन पानी भी उस पर फोर्स लगा रहा था ऊपर की तरफ। Thus the bottle is pushed upward. We have learned that the weight of an object is the
force due to gravitational force of attraction. When the bottle is immersed, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than its weight. जब ये बोतल मेरा बीकर एक पानी से भरा ये बर्तन है, उसमें यदि ये बोतल ये यहाँ पे था, सपोज करो ये बोतल है, तो यहाँ पर इसका वेट जो mg लग रहा है और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है. when the bottle is immersed, the upward force, ये upward force जो है उस पे F is greater than mg. तो इस केस में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ये बाउंस बैक कर रहा है. Therefore it rises when released. To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to water must be balanced. तो यदि इसको कंप्लीटली इमर्ज करना है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर इस बोतल में बोतल का वेट और ऊपर की तरफ जो वेट है दोनों यदि इक्वल होगा, F इज इक्वल टू mg होगा, तो वो क्या होगा, कंप्लीटली उसमें डूबा रहेगा. दिस कैन बी अचीव्ड बाय द एक्सटर्नली अप्लाइंग द फोर्स डाउनवर्ड. यदि ये F ज्यादा है तो हमको नीचे की तरफ बोतल में फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डुबाने के लिए. And this force must be equal to the difference between the upward force and the weight of the bottle. जितना डिफरेंस रहेगा, जितना ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, उतना ही हमको नीचे की तरफ हाथ से फोर्स लगाना पड़ेगा बोतल पे. And this upward force exerted by the water on the bottle is known as the upthrust or the buoyant force. And in fact, all objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. The magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid. और ये buoyancy force जो ऊपर की तरफ लगता है वो डिपेंड करता है कि उस फ्लूइड का डेंसिटी क्या है और उस ऑब्जेक्ट का भी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा. तो यदि हमको डेफिनेशन पूछेगा जनरल डिफरेंस व्हाट इज buoyant force, the upward force exerted by the fluid on the objects when the object is immersed in that fluid is known as upthrust or buoyant force. अब है कि why does objects float or sink when placed on the surface of water? किसी ऑब्जेक्ट को पानी पे डालते हैं तो कुछ डूब जाता है और कुछ तैरते रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हम लोग समझेंगे ये भी एक्टिविटी के थ्रू. टेक ए बीकर फिल्ड विथ वाटर, टेक ए आयरन नेल एंड प्लेस्ड इन इट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, द नेल सिंक. नेल को, कांटी को यदि पानी में डालेंगे तो क्या होगा, डूब जाएगा. द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ पुल इट डाउनवर्ड्स एंड देयर इज अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल व्हिच पुशेज इट अपवर्ड. But the downward force acting on the nail is greater than the upthrust of the water, so it sinks. नेल पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की तरफ buoyant फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट लगता है. तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा था इस केस में, तो इस कारण से वो नेल जो है सिंक कर गया. अब यही एक्टिविटी है, उसी का मॉडिफिकेशन. नाउ वी विल टेक कॉर्क एंड आयरन नेल ऑफ इक्वल मास. आयरन नेल का जितना मास है उसी मास का एक कॉर्क भी ले लेते हैं. प्लेस देम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड वी विल सी द कॉर्क फ्लोट्स व्हाइल द नेल सिंक. यहाँ पर कॉर्क तैरेगा और ये डूब जाएगा. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी. यह क्यों हो रहा है, मास तो सेम है लेकिन डेंसिटी अलग है. कॉर्क का डेंसिटी कम है और नेल का डेंसिटी ज्यादा है. द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. एक गिवन वॉल्यूम के लिए कितना मास है वो दिखाएगा डेंसिटी. पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा उसको डेंसिटी बोलते हैं. द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. कॉर्क का डेंसिटी वाटर से कम था, इस कारण से अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क, सो इट्स फ्लोट्स. वही डेंसिटी ऑफ द आयरन नेल इज द मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इस कारण से वो सिंक कर गया. और उस केस में अपथ्रस्ट जो है आयरन नेल पे वो कम है कंपेयर टू वेट. देयरफॉर ऑब्जेक्ट डेंसिटी जिसका लेस रहेगा वो क्या होगा, पानी में तैरेगा. जैसे कॉर्क का डेंसिटी
पानी से यदि कम है तो वो तैरेगा, वही ज्यादा रहेगा तो वो डूब जाएगा। The object of density greater than that of the liquid sink in a liquid. कंक्लूजन यही निकला कि कौन तैरेगा और कौन डूब जाएगा। जिसका डेंसिटी, जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी उस लिक्विड के डेंसिटी से कम रहेगा वो तैरेगा, और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा रहेगा तो वो सिंक कर जाएगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन भी बता सकते हैं, एक स्कूल बैग है तो उसका स्ट्रिप पतला रहने से क्या होगा और मोटा रहने से क्या होगा। व्हाट डू यू मीन बाय बुओयेंसी? व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक? ये सारा क्वेश्चन अभी आप कर पाइएगा। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो क्या होता है, तो ये भी हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक स्टोन लेना है, उसको या तो एक रबर स्ट्रिंग से अटैच कर देना या एक स्प्रिंग बैलेंस से उसको अटैच कर देंगे। Suspend the stone by holding the balance or string as shown in the figure. स्प्रिंग बैलेंस लगा करके या फिर स्प्रिंग को लेकर के उसको होल्ड करेंगे, जैसा यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं। ये डायग्राम देख रहे हैं, इसको होल्ड किए। नोट द इलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू वेट ऑफ द स्टोन। और वो मेजर कर लेंगे कि कितना उसका लेंथ है, या फिर वेटिंग मशीन है उसमें स्प्रिंग बैलेंस है तो उसका हम वेट नोट कर लेंगे। नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन द वाटर इन ए कंटेनर एज शोन इन द फिगर। अब इसको धीरे धीरे इसमें डुबाना है, और डुबाते हुए हमको इसका रीडिंग देखना। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। बैलेंस का रीडिंग देखना या इसका लेंथ को मेजर करेंगे इसको डुबाते हुए। You will find that the elongation of a string or the reading of balance decreases as the stone gradually lowered in the water. देखेंगे जो जो उसको अंदर ले जाएंगे तो उसका रीडिंग जो है कमते जाएगा, स्ट्रिंग का लेंथ घटेगा या वेट भी घटेगा। However, no further change is observed once the stone get completely immersed in the water. इन एक बार वो स्टोन लिक्विड के लेवल से नीचे चला जाएगा, पूरा डूब जाएगा, तब हम लोग कोई चेंज नोटिस नहीं करेंगे। Now what do you infer from decrease in the extension of a string or the reading of the spring balance? The elongation produced in the string or the spring balance is due to the weight of the stone. Since the extension decreases once the stone is lowered in the water, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ फोर्स लगता है जब स्टोन को यदि हम पानी में लेके जाते हैं तो उसमें कुछ अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग decreases and hence the elongation also decreases. This upward force exerted by the water, as we already discussed, is the force of the buoyancy. What is the magnitude of buoyancy force experienced by the body? Is it the same in all fluids for a given body? Do all the bodies in a given fluid experience the buoyancy force, same buoyancy force? तो buoyancy force के बारे में हम लोग जाने, किसी ऑब्जेक्ट को यदि किसी फ्लूइड में डुबाते हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स जो लगता है उसको buoyancy force बोलते हैं। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या ये फोर्स एक गिवन ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग लिक्विड में सेम होगा, या फिर एक गिवन या अलग अलग ऑब्जेक्ट का गिवन लिक्विड में buoyancy force सेम होगा? 2-3 स्लाइड। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस लर्न व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इट स्टेट्स व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड it experiences a upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. तो किसी बॉडी को यदि पानी में डुबाते हैं तो उस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू वो कितना उस फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है उस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ यू कैन एक्सप्लेन why a further decrease in the elongation of the string was not observed in activity 10.7. तो क्या होता था, यदि पानी में पूरा वो स्टोन डूब गया तो उस केस में क्या होगा, वो फर्दर वो पानी को डिस्प्लेस नहीं करेगा।
जब तक वो नीचे जा रहा था तब तक पानी को डिस्प्लेस कर रहा था। एक बार पूरा सबमर्ज्ड हो गया तो फर्दर वो पानी डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो फर्दर फोर्स उस पर नहीं लगेगा। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत सारा एप्लीकेशन है। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। लेक्टोमीटर्स, दूध का प्योरिटी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लेक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ऑन दिस प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस आप लोगों कीजिए। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, रिलेटिव डेंसिटी, वो क्या होता है। Density we already know, density of substance is the mass of a unit volume, और उसका यूनिट होता था मीटर पर क्यूब। अब for the density of given substance under specified condition remains the same, मतलब given temperature, pressure condition में सेम होगा डेंसिटी। Therefore the density of the substance is one of its characteristic property, characteristic property है डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का। बट इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग डेंसिटी होता है। जैसे गोल्ड का होता है 19,300, while वाटर का 1000 होता है। The density of given sample of substance can help us to determine its purity. गिवन सब्सटेंस का डेंसिटी फिक्स होता है। यदि इधर उधर है डेंसिटी, मतलब कुछ तो दाल में काला है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, तो किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी उसका प्योरिटी बताता है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन कंपैरिजन विथ दैट ऑफ वाटर। ये मतलब बहुत सुविधाजनक होता है कि वाटर के टर्म में रिप्रेजेंट करे किसी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को। तो ये टर्म आया द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, एंड दैट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब चूंकि ये रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ, तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे। हमको पता है फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये इस तरह से 10.8 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी, सपोज कीजिए किसी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी 5 है, तो इसका मतलब क्या है, उसका एग्जैक्ट डेंसिटी या डेंसिटी क्या है, 5000 है, क्योंकि वाटर का 1000 होता है। तो किसी गिवन ऑब्जेक्ट जिसका रिलेटिव डेंसिटी x है, तो x टाइम्स ऑफ 1000 उसका डेंसिटी होगा। इस तरह से हमारा ये लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो ये मेरा फ्लोटेशन चैप्टर इस तरह से यहाँ पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।